Okay. So Dhaval, we are done with the interview and now it's time for the feedback. So I'll start from the Parth. Yes, Parth. Yes, please. What is your first of all, Dhaval? I would like to ask from you, like, how was the interview? Like, what was your experience? It was bad, good. Like, how was the experience? So this was the first experience of my to get into an interview. I was really expecting lots and lots of grilling. I was expecting some technical questions, some GK questions, some budget issues, some government questions, but that didn't really happen. I'm expecting that I will not be able to speak even during the interview, which happened in starting, but then it went off. Okay. Yes, Parth. Please start. So the whole first and foremost thing is you have to change your resume, because I was not, I was not aware about that you are the fresher. Nothing except mentioned like when past your SSC, when past your SSC, and you completed. You have not mentioned about your extracurricular activities and as such things. So that needs to be inculcated, because question will arise from that. If you will give chance to panelists to speak, then they might grill you. Interview should be driven by you, not by the panelists. So I will share the one or two examples of resume, so you can go through it, and you have to definitely change your this entire resume. Regarding course and certificates also, briefly you have to mention like what you have learned from that courses, so that the panelists will know that in which domain you are expert, and in which domain we should ask you the question. So the one reason was that why more technical questions were not came, because we were not aware that what question, or basically what you have learned from the specific courses. Another thing, if I talk about your interview, tell me about yourself should be crushed, and it should be not more than a minute, and it should cover entire thing from where you have done your from where you belongs to, from where you have done your bachelor's, from where you have done your this HSC, SSC, both the things, and what all things you have done in your bachelor specifically, like anything you have hosted any event, and as you have mentioned, like you have signed an MOU, and you have linked with entrepreneurs, and you have bring them guest as a guest, and you have introduced and done some seminars and webinars. So this should be the key point of your interview, and this interview can only drive from that 4 or 5 points only. So that you have to mention in your introduction itself that you are enthusiastic about this, and rather than introducing yourself as an introvert, you can say I am an ambivert. I have done, I have hosted so and so things, and likewise you can mention. Another thing is about course and certifications. So whenever I have asked you like what you have learned, you were you were not confident about your answers. So I would advise you to basically write down these questions. Will arise. It will definitely arise in 1 or 2 interviews from certification and courses. So just write down whatever thing you have learned it from, and whatever question you arise, like someone will ask, you will think that from this some questions might came. So you should write down that points, so that you will be one track would be there, so you will not lag in the interviews in between. So that's it from my side regarding this resume. Yeah, resume you have to change entirely. So as of now, that's it from my side. All in all, interview went well. What I feel that you have many things to say, but that are not structured actually. Yes, Brajesh. Firstly, I want to highlight that what Parth has mentioned. Like from a resume, it is not clear that when you are passed out, like your passing year was not mentioned. So interviewer might not get the clear picture that where you are you a fresher or worker or something like that. And your introduction part, that should be your crisp, as Parth mentioned. Apart from that, in during certain answers like why MBA and introduction, it seems like your eye contact was a bit lacking. It seems like you are something reading, like you are reading from somewhere or
something like that. Okay. And during when ma'am had asked that what are your preferences, so you have mentioned only 3 colleges. It shows that you are not willing to take admission in other colleges. So that colleges will straight away going to reject you for sure. And you एंड also mentioned ब्रिजेश that मैं if आपके क्वेश्चन के साथ ही ऐड कर देती हूँ ये चीज, ताकि फिर मैं अलग से बताऊं. इट वाज लाइक कि मतलब थोड़ा ना कि बस मुझे इन तीनों में जाना है, आई एम कैपेबल, लेना है आपको ले लो, नहीं तो मतलब इट वाज yes, अ एटीट्यूड लाइक दैट. सी, आपको yes, ma'am. जाना है या नहीं जाना है, ये आपकी प्रायोरिटी आपके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि अगर आपने 3 कॉलेजेस के नाम लिए, तो जैसे ब्रिजेश ने बोला कि बाकी के जो कॉलेज है वो आपको स्ट्रेट रिजेक्ट तो करेंगे ही. हो सकता है जो सामने वाला इंटरव्यूअर बैठा हो वो इन तीनों के अलावा किसी और आईएम का प्रोफेसर हो, उसकी ईगो तो हर्ट हो गई ना. ईगो नहीं, उसका तो उसकी रिस्पेक्ट हर्ट हो गई, राइट. तो आपने हो सकता है कि आपको चलो इन 3 के अलावा 4th कॉलेज में आपको ऐसा था कि शायद से मैं जा सकता हूँ, वो चॉइस आपने हटा दी. और आपको नहीं जाना है तो मत जाना ना बाद में. उन्होंने आपसे ये थोड़ी ना बोला कि सेलेक्ट होने के बाद आपको आना ही होगा. तो अगर मैंने आपसे बोला था एनी 5 आईएम्स, तो आप 5 बोलो, लेकिन आप यही बोलो कि कैप में जितने भी, मैं यहाँ पे कैप जितने भी आईएम्स हैं मैं सबके लिए, मतलब मेरे पास लिस्ट में सारे ही आईएम्स हैं, बट अगर मैं रैंकिंग, अगर वो आपको फिर भी आपके ओपिनियन पूछ रहे हैं, 5 आईएम्स आपको फोकस करके बोल रहे हैं, तब आप फोकस में बोल दीजिए. बट डोंट से कि मैं इनमें ही जाऊंगा, इनके अलावा नहीं जाऊंगा. वो जाना ना जाना तो हमारी चॉइस है ना बाद की. तो ऐसा मत बोलना. मतलब अगर मैं भी वहां पे कैप का इंटरव्यू ले रही होती ना, तो मैं आपको सीधा रिजेक्ट कर देती. मतलब मुझे ऐसा होता कि इसे तो मतलब थोड़ा एटीट्यूड वाला वो चीज थी यहाँ पे, तो उस चीज को प्लीज हटा देना. ठीक है, ये तो आंसर बिल्कुल भी मत देना. यस ब्रिजेश प्लीज. And it will also give a bad impact on the colleges which you have mentioned. Like if the professor is from that college, they will also get a clue that you are a more overconfident person. Like you have mentioned that instead of going to that I will do a job in KPMGs. So you are focusing more your connection, that I have connections, so I can do on my own that instead of doing MBA from that colleges. So try to clear that thing. And at last, when ma'am answered asked the question that what did you have any question from us our side, so at that point you should ask some question from the institute professors, like what's the college's vision, mission, and apart from academics, what I can add to my CV, or what other things I could learn. It will show that you are willing to learn, that you have interest in these colleges. So adding to So you should Bridges' definitely ask the point, question. yeah, I'm specifically, telling you are more inclined towards arts. So you can simply ask that, sir, is there any opportunity for me to showcase my arts in the institute or anything as such? Only that question also will show your inclination towards the institute. So something you should ask, basically. That is the main point. Correct, Bridges? Yes, definitely. And you are again more focusing on finance part. So the interviewer might ask you that instead of doing MBA specialization in finance, you could also do a CA or CFA courses. So why you are not pursuing that? They can ask that. Other to avoid such questions, you can tell that I had active interest in finance, but I also want to explore the other areas also, other fields also, because I'm a fresher and I have a time to explore. Okay, okay, that's all from my side. Overall, the interview was good. Your other answers were quite clear. Okay, ma'am. If I start giving the feedback, I'll tell you first positive points. Positive points was आपने जो आंसर दे रहे थे, सबसे पहले तो मैं आपको ये जज कर सकती थी यहाँ पे कि यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन. हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर लर्निंग द थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू पुट लाइक इन अ, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आपने यहाँ तक आने के लिए इधर टू गेट द IIM कैप कॉल, या फिर अपने कॉलेज में भी जैसे CV में भी दिख रहा था, तो यू आर द हार्ड वर्किंग पर्सन. बट इसके साथ साथ मुझे ये भी शो हो रहा था कि आपको ना लाइफ में लाइक बहुत कुछ करना है, लेकिन इसके साथ साथ से शायद से आप जो लाइफ में अदर चीजें होती हैं, एज आई मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है,
जैसे ब्रिजेश ने फिर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए बात की, या कुछ जैसे आपके पास आर्ट्स और ये सब चीजें थी बट आप उन चीजों पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। यू आर अ टाइप ऑफ द बुक वॉर्म टाइप, सब एक एक्सटेंट तक, बहुत ज्यादा नहीं बट एक एक्सटेंट तक कि मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो लाइफ को लेके। तो इट शोज लाइक दैट। तो इट्स अ गुड और बैड थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि वो सिर्फ बुरी चीज है या फिर वो अच्छी चीज है, बट अगर मैं अपने कॉलेज में एक एक्सपेक्ट करूंगी ना, तो मैं चाहूंगी कि एक ऐसा स्टूडेंट हो जो ओवरऑल लाइक हर चीजों को थोड़ा 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 मैनेज करते हुए जा रहा है। तो बहुत ज्यादा सीरियस आपके पूरे इंटरव्यू में, अच्छी चीज ये थी कि चलो ठीक है आप आंसर दे रहे हो, आपका जो अटायर है वो भी अच्छा है, आप ट्राई कर रहे हो, आप मेहनती हो, ये सब चीजें थी। लेकिन साइड बाय साइड जो सीरियसनेस थी आपके चेहरे पे, पूरे इंटरव्यू में कहीं पर भी स्माइल नहीं थी। तो ये मतलब थोड़ा सा ना कई बार बोरिंग हो सकता है, सामने वाला ठीक है चलो फटाफट इंटरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि आपको अपने आपको थोड़ा सा उस साइड भी जाना होगा, तो थोड़ा सा चेहरे पे ना स्माइल रखना, अगर मैं पर्सनल वैसे फैक्टर से बोलूं, मतलब ये अच्छा होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स देता है सामने वाले को भी। थोड़ा सा स्माइली फेस हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया तो जैसे ब्रिजेश ने भी बोला, तो हमें ये पता नहीं चल पाया कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, कैसे किया, क्या चीज थी, जबकि आपके पास बहुत सारी चीजें थी और आपने एक या 1.5 मिनट्स के अराउंड आपने बोल दिया कि इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, राइट। हो सकता है मैं आपसे और जानना चाह रही हूँ। तो आप जब भी अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करो, जब अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, तो स्टार्ट कलेक्टिंग द बुके पॉइंट्स। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अराउंड 15 बुके पॉइंट्स आप अपनी इंट्रोडक्शन में रखो। एंड ये बुके पॉइंट्स आपके पास क्या हो सकता है, योर नेम, ठीक है, आई एम धवल खत्री, आपका लोकेशन, आप बोर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पे हो सकता है मैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेती, जैसे ब्रिजेश ने मेंशन किया हमें ये नहीं पता चला आप कहाँ से बिलोंग करते हो, राइट, तो आपका लोकेशन हो सकता है। अब आपने बोला कि आपकी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है, बट जब बात उस बिजनेस वाले क्वेश्चन पे आए तो आपने अपने फादर का, हमें बाद में पता चला कि योर फादर इज वर्किंग विद ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमें इंट्रोडक्शन में तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ था। वी वर अज्यूमिंग कि जैसे आपने फैमिली बिजनेस बोला तो आपके फादर एक बिजनेसमैन है, तो वो क्लैरिटी नहीं था। तो आपका इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद आपका एकेडमिक प्रोफाइल आ गया, ठीक है, आपने जैसे आपने मेंशन भी किया हुआ था आपके रिज्यूमे में कि आप टॉपर वगैरह थे, ये सब चीजें थी। उसके बाद फिर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, आपके सर्टिफिकेशन, मतलब जब तक सामने वाला सुनना चाहता है तब तक उसको सुनाओ। इंट्रोडक्शन इज द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू आर शोकेसिंग योरसेल्फ हु यू आर, राइट। तो वहीं से शायद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, आप जिस डायरेक्शन में आप अपने इंटरव्यू को लेके जाना चाह रहे हो। तो इट टोटली, जैसे आपने बोला कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड ऑल दिस थिंग, माइट भी आपसे जीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले इंटरव्यू में, माइट भी ना भी पूछे, तो वो बहुत वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, वो आपके सर्टिफिकेशन पे हो सकता है सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा फिनेंस से रिलेटेड बैठ गया, वो फटाफट मतलब अच्छे से वाट मतलब लगा सकता है आपकी, क्योंकि इतने सारे सर्टिफिकेशन ऐसी चीजें, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो अपना इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट 15 बुके पॉइंट्स मिनिमम रखो। जब आप बोलने जाओगे तब आपके पास 12 याद रहेंगे, और जब एक्चुअल में बोल पाओगे तो 8-9 ही याद आएंगे, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन एक फुल फ्रेम्ड, जरूरी नहीं कि वो सीधा सीधा ऐसा बोले कि टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ, हो सकता है वो आपसे ये बोल दे, जस्ट टेल अस समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो आपसे पूछ ले, तो डिफरेंट वे हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपको अपना प्लीज जितना भी टाइम आपके पास बचा, एक बार इंट्रोडक्शन को और थोड़ा प्रिपेयर कर लो, हम लोगों को भेज देना, हम एक बार रिफाइन कर लेंगे। द सेकेंड थिंग, वो कॉलेज वाली चीज तो जैसे ब्रिजेश ने और भारत ने पॉइंट आउट की है, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना, वो गलती मत कर देना। फिर जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपने लाइफ में कभी स्ट्रगल फेस किया है, तो दो चीजें होती हैं, जैसे आपने बोला था कि मतलब आप एक गांव से बिलोंग करते थे, वहां पे थोड़ा मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली ये सब, तो उसे स्ट्रगल के पॉइंट में आप बता सकते हो। स्ट्रगल मतलब आपका हो सकता है आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे एज ए लाइक मैंने 10th 12th अपने स्टेट बोर्ड से पास किया, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा स्ट्रगल, क्योंकि इन बिटवीन शायद से इंटरव्यूअर को ऐसा फील होगा कि आपका जो इंग्लिश फ्लुएंसी है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट ऑन द अदर एंड आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, इट शोज कि यू वर्क द लॉट इन योर ऑन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में जब मतलब मैं अपने गांव से अहमदाबाद शिफ्ट हुआ तो मैंने इस चीज में स्ट्रगल किया था, एज अ स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रगल एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने ये स्ट्रगल किया था बट मैंने उसको थोड़ा मतलब ऐसे चीजों को ओवरकम किया है,
ठीक है। और बाकी आप जब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मुझे, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि यू आर नॉट अ सोशलाइज पर्सन एंड ऑल दिस थिंग, तो आपने बोला नहीं, फिर आपने थोड़ी देर के बाद उसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इंट्रोवर्ट था ये सब। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं स्टार्टिंग में इंट्रोवर्ट था इसलिए मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट अभी आप उस चीज पे वर्क कर रहे हो। देखो, कुछ नहीं आता उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? तो ठीक है, सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, बी ऑनेस्ट विद देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आंसर, जैसे कोई आंसर नहीं आ रहा है तो बफल करने से, ऐसे करने से अच्छा है कि आप सीधा सीधा बोल दो कि सर आई डोंट नो, सॉरी सर, ठीक है। तो बाकी चीजें अच्छी थी, मुझे आपकी सिंसेरिटी पसंद आई इंटरव्यू में, सीरियसली अच्छा चीज था वो। आप ट्राई करे थे आंसर देने का, इवन दो वट एवर यू हैव डन उसके रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए आपने आंसर दिया, ठीक है, एक एक एक्सटेंड तक सही भी था। और बाकी हाँ, जॉब शुड नॉट बी द प्रायोरिटी, जॉब शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ कॉलेज, राइट? अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो अच्छी जॉब मिल ही जाएगा, ठीक है। एमबीए करना इज नॉट अ जॉब फैक्ट्री कि आप यहाँ पे आ रहे हो आपको जॉब, तो आपने बेसिकली आपने ये किया, जॉब अच्छी कंपनीज आती है, जैसे हम जब कॉलेज की बात कर रहे थे, आप एक्स्ट्रा चीजों पे बात करो ना। आपको क्लास कमिटीज को स्ट्रक्चर पैडागोजी अगर आपको पता है, वहाँ के सीनियर से लिंक है तो ठीक है, तो इन सब चीजों पे बात करो, जॉब पे बात मत करो। अगर आप बोल रहे हो कि ये वाली कंपनी आती है, हो सकता है हम बोले कि नेक्स्ट डे वो कंपनी नहीं आएगी, तो क्या आप हमारे कॉलेज में नहीं आओगे? तो जॉब वाला क्राइटेरिया थोड़ा सा वहां से हटा दीजिए। आपका वाई एमबीए का आंसर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए और आप मुझे रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सब मिलेगा, कहाँ मिलेगा कॉलेज में? ठीक है, एसआईपी मिलेगी, समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट के टाइम पे जाओगे, बट फिर भी एक एक्सटेंडेड रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको कंपनी में मिल जाएगा। जाके वर्क एक्सपीरियंस लो 2-3 साल का, उसके बाद आना एमबीए करने, ठीक है। तो प्लीज इस आंसर को प्रिपेयर करो। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर करो, आप प्रिपेयर करो, आप हमें भेजो, एक बार हम देख लेंगे और फिर ऐड ऑन कर देंगे चीजों में, अपने आप से सोचो। बट वाई एमबीए आंसर आपका बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है बच्चे, ठीक है, इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। आई थिंक आई कवर्ड, एंड पार्थ और ब्रिजेश ने भी मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। एनीथिंग एल्स पार्थ एंड ब्रिजेश यू वांट टू ऐड? नो नो, अभी तो सच तो कुछ नहीं, बट एक वन थिंग कि अगर कुछ गलत बोल दिया, if suppose you said something wrong, then also stick to that point. Don't change your comments what you have mentioned earlier. तो पहले introvert बोला तो stick to that. You are introvert, it's fine. It's not like that everyone should be extrovert or ambivert. Stick to that specific points. If that is wrong from your side also, then also. और दूसरी चीज कि अगर कुछ चीजें नहीं है आपके रेज्यूमे में, then make it. No one is going to verify. At ओके, least you should have the answers of the things which you have mentioned. That is it. और जैसे तुमने बताया कि तुमने बजट बजट के बारे में प्रिपेयर किया और भी चीजें प्रिपेयर करी, सो तुमने बहुत सारी फाइनेंस की रिलेटेड चीज बता रखी है तुम्हारी में, तो तुम, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है जैसे बजट के बारे में टॉक करना, तुम रिलेट कर सकते हो, एट द एंड तुम बता सकते हो कि इन दैट बजट वी कैन गेट दिस, वी कैन इन्फर दैट दिस स्ट्रेटेजी और समथिंग लाइक दैट, तो तुम वो बता सकते हो। सो तुम्हारा नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा फिर। Yeah, definitely. हम्म। एंड कभी भी जैसे बात नहीं बोला ना, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज अ पर्सनैलिटी टाइप्स, दीज आर नॉट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। कई बार स्टूडेंट्स अपनी इंट्रोवर्ट को बोल देते दिस इज माई वीकनेस, हाउ कैन इट बी अ वीकनेस? इट्स अ पर्सनैलिटी टाइप, आई एम इंट्रोवर्ट, इट्स ओके, राइट? आई एम एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी टाइप, नॉट योर वीकनेस, नॉट योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसके बारे में अशेम्ड होने की जरूरत नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या ऐसा हूँ, इट्स माई पर्सनैलिटी, ठीक है। बट येस, आई एम ट्राइंग टू लाइक, आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं आप लोगों से थोड़ा कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, ये सब चीजें। एंड जैसे आपने लिंक्डइन वाला एग्जांपल दिया था ना, आई थिंक लिंक्डइन इज नॉट द करेक्ट वे टू इम्प्रूव योर कनेक्शन। ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क हो गया, वहां पे एक अलग चीजें हो गई। वहां पे तो आपने प्रोफेशनली 2-4 बातें की, किसी से कुछ हेल्प मांगी, कुछ पूछ लिया, दैट्स इट। बट इससे आपका वो थोड़ी ना वो हो जाएगा। मतलब जब आप लोगों से मिलना, सोशलाइज, मतलब वैसे लोगों से मिलना, उनसे मतलब उनसे बात करना, वो सब चीजों में इंप्रूव करेगा ना। तो आई थिंक लिंक्डइन का एग्जांपल मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, क्या बोलते हो पार्थ और ब्रिजेश? डेफिनेटली मैम, मतलब डेफिनेटली। लिंक्डइन के बाद वाला जो बोला ना वो सही था कि हाँ, थ्रू लिंक्डइन I came across some other peoples and I have bought them for the guest lectures and all that.
हाँ तो वो वो सही था. हाँ LinkedIn specifically that is not true actually. और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि तुम मोर करिकुलर के रिलेटेड एकेडमिक रिलेटेड फोकस हो, तो लिंक्डइन से वो पता चलता है कि तुम मोर ओवर उसी रिलेटेड हो, तुम मोर फेस टू फेस कनेक्शन वो ज्यादा तुम्हारे सोशलाइजिंग में काउंट होगा. सो तुम उस पर ज्यादा एग्जांपल देने की कोशिश करो. लिंक्डइन वाला एज सच इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है. ठीक है. एंड बी कॉन्फिडेंट, यू हैव द 3-4 days ऑफ द टाइम. अभी इन चीजों पे जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं उन पे एक बार वर्क कर लो और थोड़ा सा रिफाइन कर लो, हमें भेज दो, हम एक बार और देख लेंगे. बाकी अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका. एंड डोंट थिंक कि आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में ऐसा होता है कि हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो हम अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे. इट्स नॉट ट्रू. ठीक है, इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक मीडियम लेवल पे इंग्लिश होता है, वो इंटरव्यू अच्छे अच्छे इंटरव्यूज क्रैक करते हैं. तो ये चीज माइंड में बिल्कुल मत रखना कि मतलब मुझे फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में तो मैं इंटरव्यू में कैसे बोल पाऊंगा. जितना है उससे भी आप बहुत अच्छे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो बच्चे. ठीक है. Okay. Thank you so much. Thank you, Parth and Bridges, to give us the time and to help the Dhaval. And again, we want to see Dhaval in a good B school so that next year उनको भी as a panelist बुलाएं and वो अपने juniors के interviews लें, because I want to see all of you in a good B schools. Okay, thank you so much and good night. And अभी रात के 11 बज गए हैं and we were taking the interview. So thank you so much. Good night. Bye bye. Take care.